पहला समूएल 17वां अध्याय 38वीं आयत से आखिरी आयत तक। પોતાનું કવચ દાઉદને પહેરાવ્યું ને તેણે તેના માથા પર પિત્તળનો ટોપ મૂક્યો ને તેણે તેને બખ્તર પહેરાવ્યું અને દાઉદે પોતાની તલવાર પોતાના કવચ પર બાંધી ને તેણે ચાલી જોયું, કેમ કે તેણે તેનો અનુભવ કરીને જોયું ન હતો. દાઉદે સાઉલને કહ્યું કે આ પહેરીને હું જઈ શકતો નથી, કેમ કે મેં અનુભવ કર્યો નથી. અને દાઉદે પોતાના અંગ પરથી તે ઉતારી મૂક્યા અને તેણે પોતાના હાથમાં પોતાની લાકડી લીધી ને પોતાને સારું નાડામાંથી 5 સુવાળા પથરા વીણી લીધા ને તેની પાસે એક જોડી એટલે ભરવાડની થેલી હતી, તેમાં તે મૂક્યા. તેની ગોફણ તેના હાથમાં હતી. પછી પલિસ્તી ભણી તે ચાલ્યો અને તે પલિસ્તીઓ ચાલતો ચાલતો દાઉદ પાસે આવ્યો અને ઢાલ ઉચકનાર માણસ તેની આગળ ચાલતો હતો. તે પલિસ્તીએ આમ તેમ જોતા દાઉદને જોયો ત્યારે તેણે તેને તિરસ્કાર કર્યો, કેમ કે તે છેક જુવાન હતો ને લાલચોળ તથા સુંદર ચહેરાનો હતો. અને તે પલિસ્તીએ દાઉદને કહ્યું, શું હું કૂતરો છું કે તું લાકડીઓ લઈને મારી પાસે આવે છે? અને તે પલિસ્તીએ પોતાના દેવોને નામે દાઉદને શ્રાપ દીધો. અને તે પલિસ્તીએ દાઉદને કહ્યું, તું મારી પાસે આવ એટલે હું તારું માંસ વાયુચર પક્ષીઓને તથા વંચર પશુઓને આપું. ત્યારે દાઉદે તે પલિસ્તીને કહ્યું, તું તલવાર ભાલો ને બરછી લઈને મારી સામે આવે છે, પણ હું સૈન્યનો યહોવા ઇઝરાયલના સૈન્યનો દેવ જેનો તે તિરસ્કાર કર્યો છે તેને નામે તારી સામે આવું છું. આજે યહોવા તને મારા હાથમાં સોંપશે અને હું તને મારીશ ને તારું માથું તારા ધડથી જુદું કરીશ. અને આજે પલિસ્તીઓના સૈન્યના મૂળદા હું વાયુચર પક્ષીઓને તથા પૃથ્વી પરના રાની પશુઓને આપીશ, જેથી આખી દુનિયા જાણે કે ઇઝરાયલમાં દેવ છે. વળી આ સર્વ સમુદાય જાણે કે તલવાર ને બરછી વડે યહોવા બચાવ કરતો નથી, કેમ કે લડાઈ તો યહોવાની છે ને તે તમને અમારા હાથમાં સોંપી દેશે. અને તે પલિસ્તી ઉઠીને દાઉદની સામે લડવાને પાસે આવવા લાગ્યો. ત્યારે એમ થયું કે દાઉદે ઉતાવળ કરીને તે પલિસ્તીને મળવાને સૈન્યની તરફ તે દોડ્યો. દાઉદે પોતાનો હાથ પોતાની થેલીમાં ઘાલીને તેમાંથી એક પથ્થર કાઢ્યો ને ગોફણમાં વીંજીને તે પલિસ્તીને કપાળમાં માર્યો. અને તે પથ્થર તેના કપાળમાં પેસી ગયો એટલે તે ઊંધે મોઢે જમીન પર પડ્યો. એમ દાઉદે ગોફણ તથા પથ્થર વડે તે પલિસ્તી પર જીત મેળવી ને તે પલિસ્તીને મારીને તેનો સંહાર કર્યો, પણ દાઉદના હાથમાં તલવાર ન હતી. પછી દાઉદ દોડીને તે પલિસ્તી પર ઊભો રહ્યો ને તેની તલવાર લઈને તેના મિયાનમાંથી કાઢીને તેને મારી નાખ્યો ને તે વડે તેનું ડોકું કાપી નાખ્યું. પોતાનો યોદ્ધો માર્યો ગયો છે એ જોઈને પલિસ્તીઓ નાઠા અને ઇઝરાયલના તથા યહૂદિયાના માણસો ઉઠીને હોકારો કરીને ગાથ સુધી તથા એક્રોનની ભાગોળો સુધી પલિસ્તીઓની પાછળ પડ્યા. અને રાઈમના માર્ગમાં ગાથ તથા એક્રોન સુધી પલિસ્તીઓના માણસો ઘાયલ થઈને પડ્યા. અને ઇઝરાયલ પુત્રો પલિસ્તીઓને પાછળ લાગવાથી પાછા ફર્યા ને તેઓએ તેમની છાવણી લૂંટી. અને દાઉદે પેલા પલિસ્તીનું માથું લઈને તે યરૂશાલેમમાં આણ્યું, પણ તેનું કવચ તેણે પોતાના તંબુમાં મૂક્યું. જ્યારે સાઉલે દાઉદને એ પલિસ્તી સામે લડવા જતા જોયો ત્યારે તેણે સેનાપતિ આબનેરને પૂછ્યું કે આબનેર, આ જુવાન કોનો દીકરો છે? આબનેરે કહ્યું કે હે રાજા, તારા જીવના સમ હું જાણતો નથી. અને રાજાએ કહ્યું, તે જુવાન કોનો દીકરો છે તેની તું તપાસ કર. અને તે પલિસ્તીઓની કતલ કર્યા પછી દાઉદ પાછો આવ્યો ત્યારે આબનેરે તેને સાઉલ પાસે લાવ્યો. તે વખતે તે પલિસ્તીનું માથું તેના હાથમાં હતું. અને સાઉલે તેને પૂછ્યું કે હે જુવાન, તું કોનો દીકરો છે? દાઉદે જવાબ આપ્યો, હું તારા સેવક યસાઈ બેથલેહેમીનો દીકરો છું. May God bless the reading of this holy word. प्रभु यीशु इस पवित्र वाचन को हमारे लिए आशीष Let us pray. दुआ करें. Our Heavenly Father, we thank you for your presence amongst us. हमारे आसमानी पिता, आपकी हमारे बीच में मौजूदगी के लिए आपको धन्यवाद We देते हैं. also believe that you have a word for us. हम विश्वास करते हैं आपके पास हमारे लिए वचन है. You want your children to be very well fed spiritually. आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छे से अच्छा आत्मिक खुराक खिलाया जाए. Do so right now, O Lord, इस समय ऐसा ही आप करें प्रभु, so that we may leave this place in your strength, in your anointing, ताकि यहाँ से हम आपके अभिषेक में, आपके सामर्थ में इस जगह से जाने पाएं. so that wheresoever we go and live, ताकि जहाँ भी जाए, जहाँ भी रहें, we may uproot the kingdom of the devil in those areas. उन क्षेत्रों में शैतान के राज्य को हम उखाड़ फेंकें.
Bless these moments for us, O Lord. इस क्षणों को हमारे लिए आशीषित करें। We pray to you in the most powerful name of Lord Yeshua Messiah. ये प्रार्थना प्रभु यीशुआ मसीहा के सबसे सामर्थी नाम से And दुआ all करते said together, हैं। साथ में कहेंगे Amen. Please be seated. बैठ सकते हैं अपनी जगह। I've said this sentence many times in the past. ये वाक्य भूतकाल में कई बार मैंने कहा है। Especially for the newcomers, so listen to this. नए लोग हैं, ध्यान से सुन लें। New Testament is the substance, नया नियम जो है वो पदार्थ है, वस्तु है, and Old Testament is the shadow of that New Testament. और पुराना substance. नियम उस बात की परछाई है। Amen. आमीन। New Testament is solid, नया नियम वो सख्त वस्तु है and Old Testament is the shadow of that solid. और पुराना नियम वही सख्त वस्तु की परछाई है। Amen. आमीन। So many things that we see in the New Testament was prophesied in the Old Testament. और इसलिए कई सारी बातें जो नए नियम में हम देखते हैं उनकी भविष्यवाणियां पुराने नियम में कर दी गई थी Maybe demonstrated also, और कर परछाई के रूप में भी कर दी गई maybe थी, spoken also. बोली भी गई थी। So that is what we are going to see today in this chapter. और इस अध्याय से आज इन्हीं बातों को हम देखने वाले हैं। This story is very well known ये कहानी ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। from our child, especially Christians, from our childhood till now we know this story very well. जो मसीह परिवार में पैदा हुए बचपन से इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। ये बात को Goliath and David. दाऊद और गोलियात। Let me give you some short introduction. फिर भी थोड़ी सी बात मैं बता दूं। Jesse had 8 sons. यसी को 8 बेटे थे। The youngest one was David, सबसे छोटा दाऊद था who was all the time tending sheep in the wilderness. जो हर समय अपने पिता की भेड़ों को रेगिस्तान में जंगल में चराता था। But in doing so, he was also carrying his harp with him. लेकिन ये करने के द्वारा दरमियान वो अपनी वीणा को भी साथ में ले जाता And he would sit under a tree and sing praises unto the Lord. और पेड़ के नीचे बैठकर वो परमेश्वर की आराधना करता He था। was a worshipper. वो आराधना करने वाला You था। know, if you become a worshipper, अगर आप आराधना करने वाले बन you जाओ become a unique person. तो आप अजोड़ व्यक्ति And बन that is जाओ। what we are going to see about David. और दाऊद के बारे में यही देखने वाले He was a real worshipper of God. वो परमेश्वर का सच्ची आराधना करने वाला भक्त था। So much so इतना that when a lion came, कि जब सिंह सामने आ जाता था, it is written, लिखा हुआ है, I held him by his hair. लिखा है उसको बाल से मैंने पकड़ा। Lion? सिंह को You won't even stand very close to the cage that holds that lion in it. अगर पिंजरे के अंदर सिंह को बंद किया हो उसके नजदीक भी आप खड़े नहीं रहोगे That's ferocious. क्योंकि इतना डरावना होता है, खूंखार होता है। And David says, और दाऊद बोलता I है pulled him with hair उसको बाल से मैंने पकड़ा and tore him. और फेंक दिया। Also a bear, एक भालू को भी मैंने पकड़ा, wild bear. जंगली भालू को। Just imagine the nails of bear are this long. भालू के नाखून इतने बड़े होते हैं, Can, you know, cut you open very easily. वो आसानी से आपको चीर फाड़ कर सकता है। But he said, David says, I even killed a bear. लेकिन दाऊद बोलता है एक भालू को भी मैंने मारा है। A worshipper can do all impossible possible. जो आराधना करने वाला है नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So now, King Saul, who was king over Israel, the first king, साउल जो इज़राइल के ऊपर पहला राजा था, he was on the battlefield against the Philistines. वो फलिस्तियों के सामने एक युद्ध के दरमियान युद्ध मैदान में था। And remember one thing, एक बात याद रखें, I cannot give you all the verses right now. I'll have to keep on preaching till midnight. सभी आयतें बता नहीं सकता, रात तक मुझे प्रचार नहीं करना है। Go home and read them. घर जाके आप पढ़ें। Saul was higher than almost everyone. साउल बाकी सभी लोगों से ऊंचा था। He was higher this much than others. एक सिर सभी से ऊंचा था वो, इतना। The average height of the people at that time was 5'3". उस समय लोगों की एवरेज हाइट 5 फुट 3 इंच थी।
So he must be very close to 6. इसलिए वो 6 के आसपास होगा. Amen. आमीन. I'm giving you this number because we have wrong teaching in YouTube some places. ये इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि YouTube पे कुछ लोग गलत सिखा रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं. So Saul was higher than others. साउल दूसरों से ऊंचा था. Now he is challenged by the Philistines. अब फलिस्तियों ने इसको ललकार दिया. They are in the valley of Elah. और इला खाई में ये लोग थे. On one side is the army of Israel, on the other side is the army of Philistines. एक साइड इजराइल का सैन्य, दूसरी साइड फलिस्तियों का सैन्य है. And there is one Philistine by the name of Goliath, और एक फलिस्ती जिसका नाम था गोलियात, who is 6'9", 9 inches. जो 6 फुट 9 इंच है. 6 feet 9 inches. 6 फुट 9 इंच. Well, so many people bring his height lower to about 6'9". 6'9". Yeah, many scholars. 6'9" you say 9'6" or 6'9"? Many scholars bring that height down to 6'9". They don't say that he's 9'9". He's 6'9". गोलियात की हाइट 9 फुट 9 इंच थी, लेकिन कई लोग बोलते हैं 6 फुट 9 इंच थी. 6 फुट 9 इंच नहीं, 9 फुट 9 इंच. If he was just 6'9", then I would say, brother of Goliath visited my church sometime back. अगर वो 6 फुट 9 इंच होता तो मैं बोलता गोलियात का भाई कुछ समय पहले हमारे चर्च में हमें मिल के गया. He was 6'8". क्योंकि वो 6 फुट 8 इंच थे. I could see him, others were so short, he was that tall. मैं देख सकता था हमारे चर्च में सब लोग इधर इधर और ये इतने ऊंचे. You cannot call him a giant. उसको राक्षसी आदमी, You can जायंट call- नहीं बोल You सकते. can call him tall man. उनको बोल सकते हैं बहुत ऊंचा व्यक्ति. Amen. आमीन. So Goliath wasn't 6'9", he was 9'9". इसलिए गोलियात 6 फुट 9 इंच नहीं था, 9 फुट 9 इंच था. I have 2 photographs of one man and one woman. मेरे पास एक फोटोग्राफ है, एक पुरुष एक औरत. The man is 7'9". जो मर्द है वो 7 फुट 9 इंच है. He's alive today. आज भी जिंदा है. And the woman is 7'3". और जो औरत है वो 6 फुट 3 इंच 7'3". और 7 फुट 3 इंच. That's all. इतने ऊंचे. But Goliath was a giant. लेकिन गोलियात तो राक्षसी आदमी था. So he was 9'9". 9 फुट 9 इंच. Okay? आमीन. And so the one who was, I should say, qualified to fight Goliath was none other than King Saul. और इसलिए अगर लायकात की दृष्टि से देखें तो साउल के सामने अगर कोई लड़ाई कर सकता था तो सिर्फ गोलियात के सामने सिर्फ साउल ही खड़ा रह सकता था. Why? He was the tallest one. क्यों? क्योंकि साउल उनके राज्य में सबसे ऊंचा था. Amen. Amen. He should have said, "Okay, Goliath, I am coming against you because वो I am the बोल tallest सकता था one." कि मैं सबसे ऊंचा हूं मेरे देश में, मैं तेरे खिलाफ लड़ने आता But हूं. no, it is written he was afraid. नहीं, लेकिन लिखा है वो तो डरा हुआ He था, didn't want to go, उसको जाना नहीं था. though he had good height. अच्छी हाइट थी फिर भी. He also had, well, at that time, because of scarcity of iron, the Israelites didn't have weapons. लोखंड की कमी की वजह से, आयन की कमी की वजह से इजरायली लोगों के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे उस वक्त. But Philistines were very well versed with the things of iron. लेकिन लोहे की वस्तुएं फिलिस्तियों के पास भरपूर संख्या में थी, मात्रा में थी. Especially they were manufacturing swords, shields for the whole world. उस समय पूरी that time. दुनिया के लिए ये लोग तलवार बनाते थे, ढाल बनाते थे पूरी दुनिया के लिए. Israelites didn't have weapons, इजरायली लोगों के पास हथियार भी नहीं थे इतने. but Saul had. साउल राजा के पास थे. You see, let's read chapter 17, verse 18, 38, I'm sorry. 17 और 38. तब साउल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और इलाम उसको पहनाया. झिलम उसको पहनाया. Yes, 39 also. तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया. Yes.
So this was the armor and the weapon that Saul carried. साउल के पास इतने हथियार थे, So he could have defied Goliath. तो वो गोलियात का सामना कर सकता था। Amen. Amen. Because he was fully equipped. क्योंकि उसके पास हथियार थे, But he didn't go. लेकिन वो He गया was नहीं। afraid of the tall giant. वो राक्षसी इतने ऊंचे कद के आदमी से डर गया था। 9'9". 9 फुट 9 इंच। And here we see another man coming in the scene. और दूसरा एक व्यक्ति यहाँ पर आता है। He's not very well grown up also. अभी वो बराबर बड़ा भी नहीं हुआ उम्र He's में। still I shouldn't say baby or child, but not fully grown up. लेकिन ये अभी पुख्त भी नहीं हुआ, छोटा बच्चा भी इसको नहीं बोल सकते, लेकिन बड़ा भी नहीं बोल See, it सकते। is written about him here, verse 42. देखो 42वीं आयत में इसके बारे में क्या लिखा है। जब पलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। Handsome man. एक हैंडसम व्यक्ति था, Cheek yet pink. अभी भी गाल इसके लाल थे। Amen. आमीन। So not fully grown up. इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था। And he says, और ये बोलता I है, will go and fight Goliath. मैं जाऊंगा और गोलियत के सामने लड़ाई करूंगा। What a contrast. कितनी विरोधाभासी बात। Here is a man taller than others, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति है जो दूसरों से ऊंचा है कद who is में, fully equipped, जिसके पास हथियार है, who's king. जो राजा है। He says no. वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। And here is a boy और एक जवान लड़का who has nothing with जिसके him पास कुछ भी नहीं है, except a staff. इसके पास एक लकड़ी है। He says, I'll go and fight the devil. वो बोलता है मैं जाकर लड़ाई करूंगा। Amen. आमीन। Now listen to me very well, okay? अभी ध्यान से सुनना। I'm just giving this introduction for the newcomers. नए जो लोग हैं उनके लिए ये बातें मैं शेयर कर रहा हूं, But I'm going to share some things with you. लेकिन बाद में हम वचन में जाएंगे, संदेश में जाएंगे। It is written, ऐसा लिखा हुआ है, he discarded all the things of King Saul साउल के सारे हथियार वस्त्र दाऊद ने निकाल दिए। and he took 5 stones from the stream. और लिखा है नाले के पास से 5 पत्थर उसने लिए To fight a giant. एक राक्षसी आदमी के साथ लड़ाई करने के A stick लिए। एक लकड़ी ली and a sling with 5 stones. और गौफन के साथ 5 पत्थर लिए। I'll show those verses. अच्छा, gopher no. हाँ, गौफन अच्छी। Gopher. Go fight a giant. इतने राक्षसी आदमी के साथ लड़ाई करने के लिए बस इतना। Just wait for a moment and think what made David take that decision. एक क्षण रुके और सोचें कि दाऊद ने क्या सोचकर यह निर्णय लिया होगा। That is what should challenge you and me today. और आज यही बात से आपको और मुझे भी एक ललकार लेना है। Because we face so many problems that are just like giants for us. क्योंकि हमारे सामने इतनी सारी समस्या है, एक भी समस्या ये राक्षसी आदमी से कम नहीं है, छोटी नहीं होती है। Amen. आमीन। So what did instigate, I should say, David to go fight Goliath? दाऊद को कौन सी बात ने उकसाया कि वो गोलियत के सामने जाने के लिए तैयार हो गया? His height, उसका कद his sword, या उसकी तलवार? what was it? क्या था? His helmet? उसका तोप? Nothing. नहीं। The backing of the army of Israel? इजराइल का पूरा सैन्य मेरे पीछे है, इसलिए No, sir. नहीं। What does he say? क्या बोलता है? Verse 45. 45वीं आयत। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। जो 46.
जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What was the faith of David? दाऊद का विश्वास क्या था? It's not me who's going to kill you. मैं नहीं मारूंगा तुझे, My God is going to hand you over to me. मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में सौंपेगा। Hallelujah. My हालेलुया। God is going to give me victory. मेरा परमेश्वर मुझे विजय I दिलाएगा। faced this giant ये राक्षसी आदमी को मैं not in सामना my कर रहा हूं, strength, मेरी ताकत में but by नहीं, faith in the living God. लेकिन जीवित ईश्वर में Hallelujah. विश्वास रखते हुए। हालेलुया। If you face any problem like that, आपके सामने कोई भी समस्या खड़ी and हो you think that you are too small, और आपको लगता है मैं तो बहुत छोटा हूं even उसके if you लिए, think you are qualified, आपको लगता है मेरी लायकात ही नहीं don't इसका सामना depend करने। on your qualifications. आपकी लायकात के ऊपर आधार मत Don't रखें, depend on your experiences. आपके अनुभव के ऊपर आधार ना रखें, Don't depend upon your knowledge. आपके ज्ञान के ऊपर आधार ना रखें। Facing that problem, ये जब उस समस्या का सामना करते हो, declare to that problem, वो समस्या को कहो, I come before you मैं तेरे सामने आता हूं, in the name of Jehovah. यहोवा के नाम से तेरे सामने Hallelujah. आता हूं। हालेलुया। I come before you तेरे सामने में आता in the हूं, name of God of Israel. इज़राइल के परमेश्वर के नाम में आता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Just imagine a boy standing before a giant. एक लड़का राक्षसी आदमी के सामने खड़ा है, He challenges giant because he knows one thing. वो इसीलिए उस गोलियात को ललकार देता है क्योंकि एक बात ये जानता He है, knew his God was much bigger and stronger than Goliath. ये इतना जानता था कि मेरा परमेश्वर गोलियात से बहुत बड़ा, बहुत सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। Goliath has no chance. गोलियात के पास कोई मौका ही नहीं है इज़राइल के परमेश्वर के आगे। Amen. आमीन। We believers हम विश्वासी लोग don't play games when you have a problem. जब समस्या आए खेल खेलने मत बैठो, Fight it in the name of the Lord. प्रभु के नाम से लड़ाई करो। Hallelujah. हालेलुया। Fight it, face it सामना करो, in the name of Lord Yeshua. प्रभु यीशुवा के नाम में सामना करो। Amen. आमीन। Because you believe क्योंकि आप विश्वास करते हैं your God, आपका ईश्वर, my God, मेरा ईश्वर, God of the whole universe, पूरी सृष्टि का is परमेश्वर, mightier than anyone else. वो और किसी से भी ज्यादा शक्तिमान Hallelujah. है। Hallelujah. हालेलुया। Now just see, many times we proclaim our faith, कितनी बार हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, then our actions are just reverse. लेकिन हमारे एक्शन तो अलग ही होते हैं। Now look at this. यहां पर देखें, Verse 41. 41वीं आयत। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। What is written here? क्या लिखा है? David is standing. दाऊद खड़ा है। See, it's a valley, okay? आप जमीन का ध्यान रखें, ये खाई है। One side there is army of Philistines, another side there's army of Israel. एक साइड इजराइल फलिस्तियों की सैन्य है, दूसरी साइड इजरायलियों का सैन्य है। And Goliath and David are in the middle. गोलियात और दाऊद खाई में बीचों बीच हैं। And Goliath has started taking steps towards David. और गोलियात ने दाऊद की ओर चलना शुरू कर दिया। Just imagine. कल्पना करो, What will you do? आप क्या We करोगे? declare our faith in the Lord Jesus Christ. उस समय दावा करना, प्रभु यीशु में विश्वास की घोषणा करना। No, when we have a problem, जब ऐसी समस्या हो, we declare our faith, हम विश्वास की घोषणा करते हैं, but act differently. लेकिन फिर पीछे भी जाने लगते हैं। Yeah. The problem is coming towards us, प्रश्न सामने आ रहा है and we start moving back. और हम भागने लगते हैं। David didn't do that. दाऊद ने ऐसा नहीं किया। I don't understand. How can you get that strength from the Lord at a time like that? मुझे ये समझ में नहीं आता, ऐसे समय ईश्वर का ऐसा सामर्थ कहां से मिल जाता है। Goliath started coming towards David. गोलियात दाऊद के सामने आने लगा। He started walking. One more time. देखो फिर से एक बार, Verse 41. 41। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा
और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। It was Goliath who was walking towards David. गोलियात दाऊद की ओर चल रहा था, बढ़ रहा था। Amen. आमीन। And what was David doing? और दाऊद क्या कर रहा था? Verse 48. 48वीं आयत। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। Goliath, who thinks he has all power. गोलियात जिसको लगता था मैं सबसे ज्यादा शक्तिमान हूं, I will hold this person and crush him with my grip. मैं तो उसको हाथ में पकड़कर मसल दूंगा। He's just coming walking. और वो आराम से चलते चलते आ रहा है। And here David. और दाऊद को देखा, It's written he starts running towards the लिखा है giant. दाऊद तो फुर्ती से उसकी ओर दौड़ के बढ़ा। His claim about his God wasn't, bogus. अपने ईश्वर के बारे में जो दाऊद ने दावा किया था बोगस नहीं था। My God is going to give you into my hands. मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में And सौंप I'm going to देगा kill you. और मैं तुझे मार And I'm दूंगा, going to chop your head off. मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर It दूंगा। wasn't just, declaration. वो सिर्फ दावा नहीं था, It was faith. And then we see action. और वो विश्वास था और उसी प्रकार दाऊद को करते हुए He हमने ran देखा। towards Goliath. वो दौड़कर दाऊद की ओर गया। And what happens? क्या हुआ? Goliath is reviling this man of God. गोलियात परमेश्वर के इस बंदे को गालियां देने लगा। You think I'm a dog? You come with me to chase me away with a stick? तुझे क्या लगता है मैं कुत्ता हूं जो लकड़ी से लेके तू मुझे भगाने आया है? I will. He says what? See? देखो दाऊद क्या, गोलियात क्या बोलता है? Verse 46. 46। No, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Verse reading from 42. 42 से आगे। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। This is the claim of Goliath. गोलियात का दावा है ये, And he could do it. और वो कर सकता था He was a giant. क्योंकि वो राक्षस ही था। I still feel, though being a giant, he could be having some fear in him. मुझे ऐसा लगता है भले ही कद में बहुत ऊंचा था, लेकिन उसके हृदय में भी थोड़ा बहुत तो डर होगा। You know why? पता है क्यों? If you are a giant and you think you are so strong that no one will be able to defeat you, क्योंकि आप राक्षसी आदमी हो और आपको लगता है कोई भी आदमी आपको हरा नहीं सकता, you need not carry all the weapons with you. तो इतने सारे हथियार लेकर चलने की आपको जरूरत नहीं है। He was fully armed. देखो तो कितने हथियार लेकर वो घूमता था गोलियात। Okay, we look at his armor and all those things. Chapter 17, verse 4 onwards. 17 और 4 के अंदर, 4 से आगे 4, 5, 6, 4, 7. 5 और 6, 7. 7 तक। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नाम का एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बरछी बांधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। Fully equipped,
for warfare. ऊपर से नीचे तक कवच से बंधा हुआ A giant. एक राक्षसी आदमी। Just imagine. कल्पना करो, Looking at him, people were, it is written that their hearts were melted. लिखा है लोग उसको देखते थे तो डर जाते थे, But here this man लेकिन ये आदमी is fully equipped for war. ये लड़ाई के लिए इतने हथियार लेकर घूमता था। That tells me that even giants are afraid of their life. उससे पता चलता है इतने ऐसे आदमियों को भी अपनी जान का डर लगा रहता है। Amen. Amen. He's wearing breastplate, he's wearing a helmet, he's having a spear, he's having a shield. क्योंकि हेलमेट पहना है, बख्तर पहना है, ढाल ली है, पूरी तरह से वो तैयार है। His spear may bring fear in our hearts और भाला है, बर्छी है, because all details are given of spear, everything. सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, Fully equipped. हर तरीके से तैयार। But I believe he had a fear. लेकिन मैं मानता हूँ उसको भी डर तो था। Through this I want to tell you. इसके द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, Any giant that you face, कोई भी राक्षसी आदमी, कोई भी समस्या जिसका आप सामना करते हैं, don't ever think that that man is that strong that he's not afraid. कभी ऐसा नहीं मानना कि सामने जो दुश्मन खड़ा है उसमें कोई डर ही नहीं है। He has, उसमें भी डर है, but he's trying to show. लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि डर नहीं है। Amen. आमीन। He's trying to show his strength through his stature. वो अपने कद के द्वारा अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, But we show our strength, लेकिन हम भी अपनी ताकत in our दिखाएंगे, stature. अपने कद से नहीं, but in the name of the Lord Jesus लेकिन Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Face every problem in the name of Lord Jesus. कोई भी समस्या का सामना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। Amen. आमीन। And before David acted, दाऊद ने सामना किया उससे he पहले prophesied. उसने भविष्यवाणी दे दी। David also was a prophet. दाऊद प्रबोधक भी था, And भविष्यवक्ता भी I'm going था, to show to you that he was a prophet. और वचन से दिखाऊंगा कि वो He भविष्यवक्ता था। prophesied, उसने बोला, I'm going to kill you. मैं तुझे मारूंगा, And then फिर I'm going to chop your head away. मैं तेरा सिर धड़ से अलग Let's करूंगा। read that once again. पढ़ें Verse 46. 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। David was a prophet because he had faith in his God. दाऊद एक भविष्यवक्ता था क्योंकि उसका विश्वास अपने परमेश्वर में A था। giant is standing before him. एक राक्षसी आदमी सामने he खड़ा है says, और बोलता है, I'm going to kill you. मैं तुझे मारूंगा And I'm going to chop your head और away. मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। Just imagine, even if a giant has fallen down, आप कल्पना करो, एक राक्षसी आदमी अगर नीचे भी गिर जाए no one will dare to go close to him. तो भी कोई उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करेगा। I still remember a gangster from Anand, मुझे अभी भी याद है, आनंद का एक गुंडा था, a good friend of mine, मेरा अच्छा दोस्त था, Imu Dada. ईमू दादा नाम उनका। He was really a Dada. वो सही में एक दादा था, Because I got his certificate from police people, inspectors. क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे उसके बारे में बताया था। हमने तो एक ही गुंडा देखा, एक ही हमारी जिंदगी में, इंस्पेक्टर, नॉट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर. He told me, I have just seen one gunda in my life, and that is Imu from Anand. पुलिस वाले ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया था, हमने अपनी लाइफ में और कोई गुंडा नहीं देखा, एक ही गुंडा देखा, वो ईमू बस। Very strong man, जबरदस्त व्यक्ति, heighted like me, मेरे जैसी हाइट very muscular, और बहुत ही अच्छा शरीर, very black in color, कलर काला, and he was not afraid of anyone. किसी से नहीं डरता था वो। One day, he got so angry with the inspector, एक दिन इंस्पेक्टर के ऊपर उसको इतना गुस्सा आ गया, he went with an open knife in his hand हाथ में खुला चाकू लेकर in the police station. पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। Police people were so afraid of him, they all gave a side to him. पुलिस वाले उनसे इतने डरते थे कि एक इधर उधर एक दूसरा इधर। He now moved his knife at the body of the inspector, इंस्पेक्टर के ऊपर चाकू चला ही दिया and inspector at the right movement, went back, and the knife hit him here.
और इंस्पेक्टर ने राइट मूवमेंट पर अपने मुंह को पीछे किया तो यहां से चाकू लग के यहां से निकल गया। Inspector was hurt here. यहां पर इंस्पेक्टर को फाड़ दिया उसने। Real gunda. वो रियल गुंडा था। He chopped one of his competitor into hundreds of pieces. उनका जो सामने वाला दुश्मन था उसके 100 से ज्यादा टुकड़े उसने कर दिए। He was a Muslim, वो मुस्लिम था, a Pathan. पठान था। You know, people fear Pathans. पठान लोगों से लोग डरते हैं, He was not afraid. लेकिन ये नहीं डरता था। Emo took me to those places where he had done all these things. और ये सब काम किया था, ईमू खुद मुझे ले गए कि देखो मैंने यहाँ पर ये किया था, यहाँ पर ये किया So था। people were afraid. लोग उनसे बहुत Police डरते was थे। afraid. पुलिस डरती थी। I still remember sitting with him on his compound one day. मुझे अभी भी याद है एक दिन जब उनके कंपाउंड में उनके साथ में बैठा था, 2 policemen came 2 पुलिस वाले आए to take hafta. हफ्ता लेने के लिए। While they were still far away, दूरी थे अभी, he said, "Hey, चले जाओ." इधर दूर से बोल दिया, "ए, निकलो इधर से।" मारा साहब आए से चलो પછી આવજો. And they both left away. दोनों चले गए। Very strong man. बहुत जबरदस्त व्यक्ति था। What was I trying to say through this man? Oh yes. And anyway, there was another competitor in Anand. आनंद में दूसरा भी एक गुंडा था। No, a lady. एक औरत थी, Shantaben. Shantaben. शांताबेन। She was dadi of Parik Bhuvan. वो परिक भुवन की दादी थी And Imu Dada was Dada of the other side. और इमू दादा बाकी के आनंद का दादा था। So both were competing for sale of liquor. और दोनों जन अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहे थे शराब के अड्डे के ऊपर। Well, to make story short, लंबी बात है, शॉर्ट। Shantaben decided to kill Imu. शांताबेन ने तय कर लिया इमू को मार ही देना पड़ेगा। And she was financed by one of the leaders of Anand. और आनंद के कुछ Political leaders. आनंद के पॉलिटिकल कुछ अगवे थे, वो शांताबेन को पैसा देते थे Gave her money to kill Imu. और इमू को मारने के लिए उन्होंने पैसा दिया, सुपारी दी। And so, a trap was laid for Imu. और इसलिए इमू को मारने के लिए एक जाल बिछाया गया। There's a Polson Dairy Road in Anand. आनंद में पोल्सन डेयरी रोड है। They blocked the whole road with a truck, एक ट्रक से वो रास्ता वो लोग ने जाम कर दिया kept just small place for the motorcycle to go. और एक का मोटरसाइकिल ही निकल सके उतना ही रास्ता छोड़ा। And Imu had a bullet. और इमू के पास बुलेट थी And he had a bulletproof vest. और बुलेट प्रूफ वो छाती पर पहन के घूमते थे। But that day, उस his दिन friend, came to him and he said he's going out, so he should give his vest to him. लेकिन उस दिन उनके दोस्त ने आकर उनसे कहा कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूं तो तेरा बुलेट प्रूफ जैकेट मुझे दे दे, तो उन्होंने वो उसे दे दिया। And so this evening around 7:30, Imu was passing on his bullet. और शाम को 7 साढ़े 7 बजे इमू जब उस रास्ते से बुलेट पे निकल रहा He था, came to that truck, वो ट्रक के पास आए, just small place to go by. सिर्फ एक बाइक निकल सके उतना ही जगह है। He didn't know that there were 2 persons behind the truck ready to fire at him. उनको नहीं पता था कि ट्रक के उस पार 2 व्यक्ति बंदूक लेकर खड़े हैं, जैसे निकलेंगे गोली मार देंगे। As soon as he would be close, they would fire from a close range. और जैसे ही एकदम नजदीक से ट्रक से जा रहे होंगे वहीं से उनको नजदीक से गोली मारेंगे। And they did it. और गोली मारी। Now what I'm trying to say is this. मैं कहने के ये कोशिश कर रहा People हूं, were so much afraid of him. लोग इनसे इतना डरते थे, He fell down. वो नीचे गिर He गए। was a dada. वो दादा थे, There was so much of fear in people. लोग इतने डरे हुए थे। Even those 2 who fired at him, they were gundas. जो गुंडे थे जिन्होंने गोली चलाई, They were also afraid. वो भी डरते थे। They had shot him with, at a very close range. बहुत नजदीक से गोली मारी। When Imu fell down, जब इमू गिरे they brought a big knife. तो एक बड़ा सा चाकू लेकर They आए, cut his hands away. हाथ काट दिए, So that in case he gets up, ताकि अगर जिंदा बच जाए, खड़ा हो जाए, he will not leave us. तो हमें हमारा सामना ना कर They सके। chopped his hands away. इसलिए हाथ काट दिए। So this giant has fallen. क्योंकि एक राक्षसी आदमी गिरा, यहां पर तो एक राक्षसी आदमी गिरा है। There would have been a big thud.
गिरने की आवाज ही इतनी जोर से आई होगी गोलियात के गिरने से, The earth would have shaken. कि धरती हिल गई होगी, People would have ran helter-skelter. लोग भी इधर उधर भाग जाए गिरने की वजह से। But not so David. लेकिन दाऊद ने, It is written, लिखा है, he ran towards the body of Goliath, गोलियात के शरीर के पास दाऊद दौड़ के गया, climbed on it. उसके ऊपर चढ़ गया, लिखा है। Just imagine कल्पना करो, what courage, कितनी what हिम्मत, guts. कितनी You हिम्मत। can have such guts if you believe in Jesus. प्रभु यीशु में विश्वास करोगे तो ऐसी हिम्मत मिल सकती है। Nothing can bring fear in your life. कोई भी बात आपको डरा नहीं सकती। And it takes the sword of Goliath. और गोलियात की तलवार ली। I'm sure he must have used both his hands मुझे लगता है उसको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा होगा, because he was young. क्योंकि वो तो बहुत जवान And था, this was the sword of a giant. और ये तो राक्षसी आदमी की तलवार And थी, with just one stroke, he cut his head off. और एक ही झटके से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। Amen. आमीन। Before that, he used his sling and hit one stone on his forehead, and Goliath, the giant, fell down. ये करने से पहले उसने अपनी गोफन से एक पत्थर से ऐसा मारा कि गोलियात को यहां पर लगी, वो गिर गया। बाद में तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। I told you, मैंने कहा आपसे, the Old Testament is the shadow of the New Testament. पुराना नियम नए नियम की परछाई है। King David, or I shouldn't say king at that time, David killed Goliath with the instrument of Goliath. दाऊद ने गोलियात को गोलियात के ही हथियार से मारा। Amen. आमीन। Because he didn't carry one. क्योंकि उसके पास तो खुद का था नहीं। He killed Goliath with the weapon of Goliath. गोलियात को गोलियात के ही हथियार से मारा। Amen. आमीन। Now when we read this, we picture Jesus and the devil. जब यहां पर इन बातों को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को और शैतान की कल्पना हम करते हैं। The biggest enemy of mankind is what? इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, कौन है? Death. मृत्यु। With this weapon, the devil fights us. यही हथियार से शैतान हमारे साथ लड़ाई करता है। Amen. आमीन। You understanding me? समझ में आ रहा है? Listen to me very well. बहुत ध्यान से सुनना। The devil fights us with one fear that we fear most. सबसे ज्यादा हमको मृत्यु के डर लगता है, यही हथियार से शैतान हमारे साथ लड़ाई करता है। And we will face any fear but not death. इसलिए हम किसी भी चीज का सामना कर लें, लेकिन मृत्यु से तो डर लगता है। Death is like a giant for us. हमारे लिए मृत्यु एक राक्षसी व्यक्ति के समान है। Amen. आमीन। But what did Jesus do? लेकिन यीशु मसीह ने क्या Let's किया? go to the book of Hebrews, इब्रानी chapter 2. दूसरा अध्याय Verse 14 14वीं आयत and 15. और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लें। Read that verse once, those two verses once again. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लें। Okay, in simple words. सरल शब्दों में Let us try to understand this word. समझें। The devil. शैतान, He talks about devil. Okay. शैतान की बात है। He holds the power of death. शैतान के हाथ में मृत्यु की सामर्थ थी। लिखा Amen. है, Verse लिखा है। 14. 14वीं आयत। Read it one more time. उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें। Who holds the power of death? मृत्यु की ताकत किसे मिली थी? Satan has the power of शैतान को death. सामर्थ मिली थी। With that power,
वो सामर्थ के He द्वारा defeats you and me. वो आपको और मुझे हरा देता था। Amen. आमीन। Now, अब this verse is written about Jesus Christ. अब ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। He, यीशु मसीह ने through his death, अपनी मृत्यु के द्वारा, Jesus died, okay? यीशु मसीह मरे, Jesus died. यीशु मसीह ने अपनी Through मृत्यु के his द्वारा, death, उनकी मृत्यु के द्वारा Jesus defeated the power of death, that is the devil. शैतान जो मृत्यु की सामर्थ को रखता था उसको हरा दिया। You understand me? समझ में आ रहा है? What was the instrument or weapon of the devil? शैतान का हथियार क्या था? Death. मृत्यु। And how did Jesus defeat Satan? और प्रभु यीशु ने शैतान को कैसे हराया? With his own weapon, अपने उसी के हथियार से, death. मृत्यु से ही। You understanding me? समझ में आ रहा है? Yes or no? हाँ या ना? Jesus did not take a sword. प्रभु यीशु ने तलवार नहीं उठाई, He didn't take any armor with him. कोई दूसरे हथियार उन्होंने नहीं लिए। Just like David, दाऊद की तरह he went and faced the devil. जाकर शैतान का सामना किया And through his death, और उनके मृत्यु के द्वारा defeated the death enemy of mankind. और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु, उसको प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु से हराया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus died प्रभु यीशु मरे so that our biggest enemy could be defeated. ताकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हार जाए, So that our biggest enemy could be beheaded. ताकि हमारे सबसे बड़ा दुश्मन उसका सिर धड़ से अलग हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। David used the sword of Goliath दाऊद ने गोलियत की ही तलवार का इस्तेमाल to किया, chop off the head of Goliath. उसी का सर काटने के लिए। Similarly, Jesus उसी तरह से यीशु मसीहा ने chopped off the head of Satan शैतान का सिर काट दिया by his own weapon, उसी के हथियार के द्वारा, death. मृत्यु। Amen. आमीन। Jesus died on the cross प्रभु यीशु क्रूस पर मरे to chop off the head of Satan. शैतान का सिर काट देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, दूसरी बात, let's go back to our original पहला verses. राजा 17वें अध्याय में वापस आए। Now there is another prophecy here. दूसरी भी एक भविष्यवाणी है। It is written, David carried 5 stones. लिखा है दाऊद 5 पत्थर लेकर गया। Why there was need for him to carry 5 stones? क्यों 5 पत्थर लिए उसने? He didn't believe in his one strike. क्या उसको विश्वास नहीं था कि एक ही पत्थर से गोलियत को गिरा दूंगा? See, before striking the devil, Goliath, he is declaring that I'm going to kill you and chop your head off. क्योंकि मारने से पहले ही वो कह रहा है, मैं तुझे आज मारूंगा, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। Why was there need for David to collect 5 तो stones? जरूरत क्यों थी कि दाऊद 5 पत्थर लेकर जाए? I was thinking on this, मैं सोच रहा था इसके ऊपर, and then I got the clue. और फिर मुझे जवाब मिला। Goliath had 4 other brothers who were giants. गोलियत के और 4 भाई थे जो सबके सब राक्षसी थे, And David was going to kill them also. और दाऊद की तैयारी थी, तुझे भी मारूंगा, उनको भी मारूंगा। Hallelujah. हालेलुया। It's a prophecy here in 5 stones. ये 5 पत्थर में भविष्यवाणी है। 1 stone for Goliath एक गोलियत के and लिए 4 others for his brothers. और बाकी के 4 उसके भाइयों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's see. देखते हैं 2 Samuel दूसरा समूएल chapter 21. 21वां अध्याय। Okay, we read from chapter 21 verse 15 onwards till the end. दूसरा समूएल 21 से 21वां अध्याय 15वीं आयत से आखिरी तक पढ़ते हैं। फलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब यिशबो बनोच जो स्पाई के वंश का था, जो रफाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था,
उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था, परंतु सरूया के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों के शपथ खाकर उसने कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। Yes, here we see another giant been killed. यहां पर देखते हैं और एक राक्षसी आदमी को मारा गया। He was from Gath. वो गाद से ही था। Goliath was from Gath. गोलियात गाद से था। We'll get to know that he was brother. अभी आगे देखेंगे वो उसका भाई था। So this second Goliath giant is gone. ये दूसरा राक्षसी आदमी भी मारा गया। By whom? किसने मारा? David. दाऊद ने। Amen. आमीन। Now read again. अभी आगे Forward. इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबैक ने रपाई वंशी सबको मारा। Yes, that's the third one. ये तीसरा है। गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेथलेहम वासी यार योरमगीम के पुत्र एल्हानान ने गतवासी गोलियात को मार डाला, जिसके बरछे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। That is the fourth one. ये चौथा। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां बड़े डील डॉल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक हाथ पांव में उसके एक हाथ पांव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। तब उसने इज़राइल को ललकारा। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनाथान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उनके जनों के हाथे मारे गए। Hallelujah. 4 persons were killed 4 व्यक्ति मारे गए again by David. ये दाऊद के द्वारा। So in all, how many giants were killed by King David? दाऊद ने कितने राक्षसी आदमियों को मारा? 5. 5। We know story of only one, हम तो एक की बात जानते हैं, but he killed 5. लेकिन उसने 5 को मारा। So don't ever think after fighting one Goliath in your life, battle is over. इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना एक गोलियात को गिरा दिया तो खत्म, अभी दूसरा नहीं आएगा। Ash. Another giant is waiting for you. दूसरा राक्षसी आदमी, दूसरी समस्या तैयारी है। You defeat him, and third one is waiting for आप you. दूसरे को हराओ, तीसरा तैयारी है। The battle goes on and on and on. ये युद्ध चलता ही रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। And that battle went on till King David died. दाऊद मरा तब तक ये युद्ध चलते रहे, But he was not defeated. लेकिन He वो was हारा नहीं, victorious. क्योंकि He was victorious all the वो time. हमेशा जीतता ही रहा। Hallelujah. हालेलुया। God wants to see us as victorious people. परमेश्वर हमें विजयवंत के तौर देखना चाहते हैं। Giants will come. ये राक्षसी आदमी आएंगे, Not one, एक नहीं, not two, 2 नहीं, again and again. घड़ी घड़ी But आएंगे, we will fight लेकिन हम लड़ेंगे in the strength of the Lord, परमेश्वर की in the सामर्थ में faith of the लड़ेंगे, Lord. परमेश्वर की And सामर्थ we will में, be overcomer all the और हर time. समय हम ही And जीतेंगे। that's why it is written in Romans chapter 8 verse 37. और इसलिए रोमियो 8 और 37 में लिखा We है, are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर समय विजयवंत से भी विशेष Hallelujah. जयकार। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We conquer whom? हम किसको जीता? Giants in our life. हमारे जीवन के राक्षसी आत्मा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Others are defeated. Others are defeated. दूसरे हार गए, And others are defeated and they commit suicide. दूसरे मर गए, खुदकुशी कर ली। करते हैं. करते हैं, And they commit suicide. हार जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। Some are defeated and they live in life, their life in seclusion. कुछ लोग हार जाते हैं, मैदान छोड़कर भागकर अकेले में जीवन बिताते हैं। Some become mad. कुछ लोग पागल हो जाते हैं। Not so with the man of God. परमेश्वर के बंदे ऐसा कभी नहीं। One battle after the other. एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई। We say, come on, another giant come. आजा आजा, तू भी आजा, Tu bhi aja. Come on, I'm Amen. ready for you. हम तैयार हैं तेरे Because लिए। I'm not going to fight in my strength. क्योंकि मैं अपनी ताकत में लड़ाई नहीं करने Because वाला, I have no
weapons with me, क्योंकि मेरे पास तो हथियार ऐसे भी नहीं थे, but I have one name. लेकिन एक The नाम name that है is above all names. जो सब The नाम से name of Lord ऊपर, Yeshua. प्रभु यीशु मसीह का Hallelujah. नाम। In that name, वो नाम I will में have victory मुझे विजय all the मिलेगा, time. हर समय मिलेगा। So David दाऊद took 5 stones, 5 पत्थर से, not because he believed that he would miss one stone. इसलिए 5 पत्थर नहीं लिए थे कि एक चूक जाए तो दूसरा। I saw a demonstration of the power of a sling stone. एक ये गोफन का जो पत्थर है कितनी जोर से लग सकता है, ये इसका नमूना मैंने खुद देखा। Because so many people don't believe the stories of the Bible. क्योंकि कुछ लोग बाइबल की कहानियां विश्वास नहीं करते, They want to give different explanation for all those things. ये सब बातों के लिए अपने अपने कोई अलग अलग खुलासे Oh, this देना is चाहते हैं। not literal. Don't have to take it literally. It has some, different meaning. नहीं नहीं, जो लिखा है ऐसे उसको नहीं मानना, इसका मतलब कुछ और होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। So some people, they make some experiments. और इसलिए कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। So one person thought of seeing the power of a slingshot. एक व्यक्ति ने सोचा कि लाओ गोफन का पत्थर कितनी जोर से लगता है, चेक करते हैं। How could a giant fall down with just one shot? एक ही शॉट में ये इतना राक्षसी आदमी गिर कैसे जा सकता है? So he took a very big watermelon, और इसीलिए एक बड़ा तरबूज लिया, placed it far away, दूर रखा, and he was, expert in slingshot. और गोफन चलाने में ये खुद एक्सपर्ट थे। And then he, shot one stone. और at the जोर से पत्थर watermelon. फेंका तरबूज के What ऊपर। happened? क्या हुआ? Not only the watermelon split into two, but it split into many parts. तरबूज के सिर्फ 2 भाग नहीं हुए, फुर्जे फुर्जे निकल गए All over the room. पूरे रूम में। The slingshot has that power. ये गोफन के एक पत्थर में इतनी ताकत है। Amen. आमीन। And David knew the power of his slingshot. और दाऊद अपने गोफन खुद चलाता था, इसलिए जानता था इससे क्या हो सकता There है। was no need for him to take 5 stones. इसलिए उसको 5 पत्थर लेने की कोई जरूरत Just नहीं one थी। stone was enough. एक पत्थर काफी था। Hallelujah. हालेलुया। But he took 4 others लेकिन 4 और लिए, just to tell the world that I am coming after you, giants. ये बताने के लिए कि एक को मारूंगा, बाद में दूसरे के पीछे भी मैं आ I'm रहा going हूं। to come after you. I'm not going to let you go. मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। And the giants represent the powers of darkness. और ये राक्षसी आदमी अंधकार की सत्ताओं का प्रतीक है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So what does David say दाऊद क्या बोलता है? in New Testament language? नए नियम की भाषा में, I've killed you. मैंने तुझे मारा, I'm coming after others. अभी दूसरों के पीछे मैं आ रहा हूं, I'm not going to let you go. मैं छोड़ूंगा नहीं। That is what our declaration should be. ये हमारी घोषणा ऐसी होनी Oh, चाहिए। just after one fight. एक- No more fight, brother. एक ही Father, लड़- I'm tired. एक ही लड़ा के बाद बस बहुत हो गया, मैं तो बहुत थक गया। It is written when he was fighting the second giant. लिखा है जब दूसरे राक्षस के साथ वो लड़ाई कर रहा था, Read that. पढ़ो। It is written लिखा है David was so tired लिखा है दाऊद इतना थक गया that he was about to be killed by that giant. कि वो राक्षस उसको मार ही देता। Then it was, okay, read that. पढ़ो। दूसरा समूएल 21 16वीं आयत। तब यिशबोब नोब, I'm sorry, we read 17, 16 also, 15 also. ओके 15 से पढ़ते हैं। पलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब यिशबोब नोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था, परंतु रुवा के पुत्र अबीशाई ने दाऊद की सहायता करके उस पलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उसे कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को न जानने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। Hallelujah. हालेलुया। David was tired, दाऊद थक गया था, but he didn't let go.
लेकिन छोड़ा नहीं, He didn't leave the battlefield. युद्ध के मैदान को He छोड़ा went नहीं, on fighting the devils. शैतानों को साथ लड़ाई करना छोड़ा नहीं। For a Christian, ये एक मसीह व्यक्ति के there लिए is no going back. पीछे मुड़ने की कोई बात है ही नहीं, It's always going forward. हमेशा आगे ही It's बढ़ने की always, बात, it's always running towards the problem. हमेशा समस्या के ओर जाने की बात, Defeating the problem. समस्या को हरा Overcoming कर, the problem. उसको हरा कर And moving ahead. और आगे बढ़ना। Hallelujah. हालेलुया, That is what Christian life is. ये मसीह जीवन A है। Christian life is not that we fight and we get so tired and we give up and say, Lord, no more for me. मसीह जीवन ये नहीं है लड़ाई करो करो और फिर कहो प्रभु मैं तो थक गया अब और नहीं कर सकता। This was second giant. ये दूसरा राक्षस था जिसको दाऊद ने हराया, मारा, Did David give up? लेकिन दाऊद ने फिर भी नहीं छोड़ा। No, sir. नहीं, He killed all 5 giants. पांचों पांच को मारा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And for those 5 stones, there was a prophecy ये 5 पत्थर में भविष्यवाणियां थी, that I'm going to kill all 5 giants. पूरे पांचों 5 राक्षस को मैं मारूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Then one more prophecy we see, और एक भविष्यवाणी देखते हैं, and very important. बहुत This महत्वपूर्ण। is my own assumption. ये मेरा मानना है, Whatever study I have done, मैंने जो कुछ अध्ययन किया है, of course, there are certain such studies available on YouTube also. YouTube पे भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। I don't know what all they say, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं इस बारे but में, this is what I believe. लेकिन मैं मानता हूं। Let's go to 1 Samuel once again, 17th chapter. फिर से एक बार पहला शमूएल 17वां अध्याय, Verse 54. 54वीं आयत। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। Very strange verse. बहुत ही समझ में ना आश्चर्य करने वाली आयत। Why was there need for David to carry the head of giant to Jerusalem? क्या जरूरत थी कि दाऊद गोलियात के सिर को लेकर या तो खोपड़ी को लेकर यरूशलेम जाए? क्यों? It is written after killing Goliath, he took his head to King Saul. लिखा है कि गोलियात को मारने के बाद उसके सिर को साउल के पास वो ले गया। Yeah, 57. 57वीं आयत में, जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए साउल के सामने पहुंचाया। Yes, first of all, David took the head of the giant before King Saul. पहले गोलियात के सिर को लेकर वो साउल राजा के पास गया, And then later on from there, he took the head of Goliath to Jerusalem. और फिर वहां से यरूशलेम ले गया। Now it's a big question. अभी प्रश्न खड़ा होता है, Why was there need for David to take the head of Goliath to Jerusalem? क्यों दाऊद गोलियात का सिर यरूशलेम ले गया? I know the practices of olden times, मैं जानता हूं पुराने नियम में कुछ रीति रिवाज कैसे थे, especially strong men or prince or kings or tribal leaders. They would chop off their heads of their enemies and hang those heads in front of their doors. पुराने जमाने में जब एक शक्तिशाली आदमी किसी और शक्तिशाली आदमी को मारता था, फिर उसका सिर या उसकी खोपड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर वो लटकाता था, Just to show दिखाने के that लिए is so strong. कि मैं कितना सामर्थी हूं, Don't ever challenge me. मेरा सामना कभी मत करना। In most of the tribes, ज्यादातर कुलों में the tribal head's son had to kill or chop off many heads. जो कुल का अगवा होता था उसके बेटे को जरूरी होता था नेक्स्ट अगवा बनने के लिए खून खराबा वो करे, Many heads, more than कई others. दूसरों से ज्यादा सिर काट के उसको लाने होते If थे। his count was less than others, अगर उसने
दूसरों से कम सिर काटे हो he wouldn't become the leader. तो फिर वो अगवा नहीं बन सकता। To become leader after his father, he had to chop many heads पिता के बाद उसे अगवा बनने के लिए बहुत सारे सिर काटने जरूरी and होते hang them in front of the door. और फिर दरवाजे के बाहर वो लटकाना। So David could have taken this head to his hometown Bethlehem. तो दाऊद अपने गोलियात को मारने के बाद उसके सिर को अपने घर बैतलहम ले जा सकता था And could have hung that head, before his door और घर के बाहर वो टांग सकता था दिखाने के लिए कि देखो, to prove that he was a strong man. ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत शक्तिशाली आदमी। But surprisingly, we read that he took the head to Jerusalem. लेकिन हम आश्चर्यजनक बात पढ़ते हैं कि वो यरूशलेम ले गया। So there has to be some plan of God in this. तो इसमें परमेश्वर की कोई तो योजना होनी चाहिए। And as I said, New Testament is solid, Old Testament is shadow. और जैसे मैंने कहा कि नया नियम सख्त वस्तु है और पुराना नियम उसकी परछाई है। We see something of like that here. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम देखते हैं। Why was there a need for David to take the head of Goliath to Jerusalem? क्यों जरूरी था कि दाऊद गोलियात के सिर को यरूशलेम ले जाए? It was a very bad decision. वैसे देखने जाओ तो बहुत ही गलत निर्णय था। Because Jerusalem was not yet ruled by Israelites. क्योंकि अभी यरूशलेम इजरायलियों के हाथ में नहीं था। It was enemy territory. अभी तो दुश्मनों के हाथ में था। Jebusites ruled over that place. यबूसी लोग उसके ऊपर राज करते थे। Why should David take head of Goliath to a enemy territory? तो यबूसी जो दुश्मन का इलाका है वहां पर दाऊद क्यों गोलियात के सिर को ले जाए? I believe there was so much of enmity between Jebusites and Israelites. David wouldn't go inside the city of Jerusalem. मेरा मानना है कि उस वक्त इजरायली लोगों और यबूसी लोगों के बीच में इतना जबरदस्त दुश्मनावट थी कि इजराइल से कोई भी, दाऊद भी क्यों दुश्मन के इलाके में जाए। Yet it is written he took the head of the Goliath, the giant, to Jerusalem. फिर भी लिखा है गोलियात का सिर लेकर वो यरूशलेम गया। I believe David took that head to the outskirts of Jerusalem. मैं मानता हूं यरूशलेम की सीमाओं के बाहर कहीं, यरूशलेम में ही लेकिन शहर के बाहर जाकर उसने वो इस सिर को ले गया And buried it there. और वहां पर गाड़ दिया। What was that place? ये जगह कौन सी थी? In the New Testament. नए नियम में Where was Jesus crucified? प्रभु यीशु को कहां क्रूस पर चढ़ाया गया? The place called Skull. जिसका नाम है खोपड़ी, गोलगथा। Let's read. Come on. पढ़ते हैं। Any book you refer to, every book talks about Golgotha. मत्ती, मार्क, लूक, यूहान कोई भी ले लो, सब में गोलगथा के बारे में लिखा है। I refer to Matthew मत्ती chapter 27. 27वां अध्याय Verse 32, 33. 32 और 33। मत्ती 27, 32 और 33। Yes. बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। Now, they took the body of, they took Jesus along with his cross to the place called Golgotha. प्रभु यीशु को क्रूस के साथ कहां ले गए? उस जगह जिसका नाम था गोलगथा। Now, many people say that the place was called the skull because it had a design of a skull.
that rock had design of a skull. कई लोग बोलते हैं इस जगह को खोपड़ी इसलिए कहते थे क्योंकि उसका स्वरूप ही खोपड़ी जैसे आकार का दिखता था। Then something else should have been written in language. फिर और कुछ भी लिखना चाहिए था। It was written in the place where the skull was. लिखा है जहां खोपड़ी थी, The place of the skull. क्योंकि लिखा है खोपड़ी का स्थान कहलाता है। Where the खोपड़ी skull नहीं, was. खोपड़ी का स्थान कहलाता है जहां खोपड़ी है। Okay? So I believe David, who had a spirit of a prophet, दाऊद जिसमें एक भविष्यवक्ता की आत्मा थी, he buried the head of Goliath in the place where Jesus was crucified. उसने गोलियात के सिर को उसी जगह जाके गाड़ा जहां भविष्य में यीशु मसीह का बलिदान होने वाला था। Now we have word Golgotha. दूसरा भी शब्द है गोलगाथा। If you divide that word, it comes to Golgotha. अगर अलग करो तो गोल और गाथा। Gol means Goliath, गोल मतलब गोलियात, of Gath. कहां का? गात का। Goliath from Gath. गोलियात जो गात का था, गोलगाथा। You understand me? समझ में आ रहा है? To which city did Goliath belong to? गोलियात कौन से शहर का था? Gath. Okay? So Goliath from Gath गोलियात, गात का गोलियात is equal to Golgotha. गोलगाथा। Okay? आमीन। So this place called Golgotha owned the head of Goliath of Gath. और इसलिए ये वो जगह थी जहां पर गोलगाथा के गोलियात की खोपड़ी थी। Amen? आमीन। How many of you understand? Explain it to them one more time. It's interesting, you know. दाऊद यरूशलेम में गोलियात की खोपड़ी को ले जाकर उसने गाड़ दिया। प्रश्न खड़ा होना चाहिए, यरूशलेम में क्यों ले गया? और फिर जब हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर कहां चढ़ाया गया, तो लिखा है गोलगाथा। दूसरी बात लिखी है जो खोपड़ी कहलाया जाता था। कई लोग बोलते हैं इसका स्वरूप खोपड़ी जैसा था, स्वरूप खोपड़ी जैसा था, तो फिर ऐसी भाषा तो यहां पर इस्तेमाल नहीं कही। यहां पर भाषा इस्तेमाल की गई है खोपड़ी। ये जगह ही खोपड़ी कहलाई जाती थी, स्वरूप नहीं, जगह ही खोपड़ी कहलाई जाती थी। तो किसकी खोपड़ी यहां पर थी? दूसरी बात लिखी है गोलगाथा इसका नाम था। गोल प्लस गाथा, गोल यानी गोलियात, गाथा यानी वो गाथ का था। इसलिए गाथ और गोलियात, गोलगाथा, और उसकी खोपड़ी वहां पर थी, इसलिए दूसरा नाम ये खोपड़ी की जगह है। लेकिन किसकी? गोलियात की। Well, many people interpret this way. कई लोग इस तरह से बोलते हैं Jesus was crucified in this place because it held the head of Adam. कई लोग ऐसा बोलते हैं ये जगह पर प्रभु यीशु ने इसलिए बलिदान दिया क्योंकि यहां पर आदम की खोपड़ी थी, So that his blood would flow down to the first amongst humans. ताकि इंसानों में जो पहला इंसान था उसके सिर के ऊपर, उसकी खोपड़ी के ऊपर यीशु मसीह का And thus खून बहे। redeem the whole human generation. और उस तरह से पूरी इंसानियत को परमेश्वर उद्धार दिला दे। Amen? Amen. This is what people say. लोग ऐसा बोलते But then हैं, I have an argument. लेकिन मेरे पास दलील है। Why would there be a need just to take the head of Adam and bury it there? आदम के सिर को लेकर यहां पर दफन करने की क्या जरूरत थी? Because we read in the book of Genesis when Abraham's wife Sarah died, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं इब्राहिम की पत्नी सारा जब मरी he bought a piece of land along with a cave called Machpelah. तो उसने मिक्तला करके एक गुफा को खरीदा। He wanted to buy and he opposed the Hittites. हित्ती लोगों के पास वो गया ये खरीदने के लिए, And Hittites said, "You want to buy this? This is very expensive land. और हित्तियों ने कहा खरीदना है, अरे ये तो बहुत महंगी जगह है, 400 shekels of silver." 400 शेकेल चांदी। Abraham said, "I want to buy." इब्राहिम ने कहा कोई बात नहीं, मुझे खरीदनी है। And now the argument or maybe explanation goes this way.
अब खुलासा या दलील इस तरह से जाती है, That land was expensive, ये जमीन बहुत कीमती थी, not only for others but for Abraham. दूसरों के लिए नहीं लेकिन अब्राहम के लिए महंगी थी, Because Abraham knew Adam and Eve were buried there. In the क्योंकि cave. क्योंकि इब्राहिम जानता था आदम और हवा यहाँ पर दफन है, And he wanted his wife to be buried there. और इसकी इच्छा थी कि सारा को भी यहीं पर दफनाया जाए। If Adam is buried there, अगर आदम यहाँ पर there was no दफन है, need for his head to be carried to Golgotha. तो कहाँ जरूरत थी कि आदम को सिर को लेकर अलग ले जाकर यरूशलेम में गाड़ा जाए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Now there is also third argument. तीसरी भी एक दलील है, Because most of the people were crucified there, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर क्रूस पर चढ़ाए जाते थे, many people fell there, dead. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गिरे, And their heads were just, like loiter there. और यहाँ पर ऐसे तैसे कितने सारे लोगों की खोपड़ियां थी, So that's why people call that place skull. और इसीलिए इस जगह का नाम था खोपड़ी। There are many skulls there. बहुत सारी खोपड़ियां थी, We don't read that any place. लेकिन ये तो हम कहीं पे पढ़ते तो हैं But नहीं। we do read one thing. लेकिन एक बात पढ़ते हैं, David took the head of Goliath to Jerusalem. दाऊद गोलियात का सिर लेकर यरूशलेम गया, And that was a place where he buried was called skull. और यहीं पर उसने दफन किया जहां का नाम हो गया खोपड़ी। What place? कौन सी जगह? Place of Goliath of Gath. गात के गोलियात को जहां गाड़ा गया, गोल His गाथा, head. His head. उसके सिर को जहां गाड़ा गया, Not his body. हाँ, उसके सिर को जहां गाड़ा गया, That's a place. यही वो जगह है। Now, why was there a need? See, I don't understand, but it was a divine revelation to David maybe that he took that head and buried there. क्या कारण होगा मैं नहीं जानता, हो सकता है परमेश्वर की अगुवाई में दाऊद ने गोलियात की खोपड़ी को ले जाके यरूशलेम में गाड़ दिया, But in doing so, he was fulfilling one prophecy of God. लेकिन ये करने के द्वारा परमेश्वर की एक भविष्यवाणी वो पूरी कर रहा What था। was the prophecy that God had given to mankind? इंसानियत को, इंसानों को परमेश्वर ने कौन सी भविष्यवाणी Let's दी? go to the book of Genesis chapter 3 verse 15. उत्पत्ति 3 और 15। Yes. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। This is the prophecy God gives to mankind. इंसानों को यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी। Son of one woman एक औरत का एक बेटा is going to crush your head. वो तेरे सिर को कुचल देगा, Chop off your head. ये तेरे सिर को कुचल देगा। Amen. आमीन। Not the body, शरीर को नहीं, just the head. सिर को कुचलेगा। I've killed many snakes. मैंने कई सांप मारे हैं, I'm not afraid of snakes. सांप से मुझे डर नहीं लगता, And I know how to kill a snake. और मुझे पता है सांप को कैसे मारा जाता है। You don't go and start stamping the tail of snake. सांप को अगर मारना है तो पूंछ के ऊपर हमला नहीं करना होता, You have to hit the head. सिर को मारना है। How many of you have seen a secretary bird fighting a snake? Cobra. कितने लोगों ने सेक्रेटरी बर्ड पक्षी को देखा है कैसे कोबरा के साथ वो लड़ाई करता है? Cobra cannot do anything. कोबरा कुछ नहीं कर सकता, When it comes close, secretary bird gives one kick to its face. क्योंकि जब वो करीब आता है तो ये पक्षी ऐसी लात उसके सिर के ऊपर मारता है, That is thrown back. इतना जोर से उसको फेंक देता He है। wants to run away, अब कोबरा भागना चाह रहा है, but he cannot escape. लेकिन भाग नहीं सकता, So again, he has to face the bird. इसलिए वापस पक्षी का सामना And करना ही again, the पड़ता bird gives one kick. है। और ये पक्षी फिर एक लात मारता है, Not to the tail, पूंछ को नहीं, not to the body, शरीर को नहीं, just to the head of the सिर्फ snake. सांप के सिर को ही। Even birds know, पक्षियों को भी पता है, reptiles know, दूसरे जानवरों को भी animals पता है, know. जानवरों को भी To kill पता a है, snake, सांप को you मारने have के to लिए attack the head. उसके सिर के ऊपर हमला करना है। Amen. आमीन। How many of you have seen mongoose fighting a snake? नेवले को किसने सांप के साथ लड़ते देखा है? कभी देखा Yes. है? We saw that many times in Pune. पुणे में हमने बहुत देखा है। Roadside, those, I shouldn't call them snake men, but they had all types of tricks. सब देखा हमने पुणे में, And I saw all the time mongoose attacking
the head of the snake. और नेवला हमेशा सांप के सिर के ऊपर ही हमला करता है। To kill a snake, सांप को मारने के we लिए have to attack the head. उसके सिर पर ही हमला करना And होता this है। is what God said. ईश्वर ने यही कहा, The snake might wound the heel of that son, वो बेटे की पैर को हो सकता है वो एड़ी को वो घायल करें, but that person's leg is going to crush the head of the snake. लेकिन वही व्यक्ति का पैर सिर को कुचल देगा। And this is the prophecy about Jesus Christ. ये यीशु मसीह के बारे में That भविष्यवाणी, one man born of a woman is going to crush the head of the devil. कि औरत से पैदा हुआ एक व्यक्ति शैतान के सिर को कुचल देगा। Amen. आमीन। And in so doing, और ये करने के द्वारा his heel would be bruised. और ये करने के द्वारा उसकी एड़ी जख्मी होगी। And how was Jesus hung on the cross? यीशु मसीह कैसे क्रूस पर लटकाए You गए? see, most of the depictions are wrong. कई सारे पिक्चर जो दिखाते हैं गलत है। The legs of Jesus were pierced to the wood through the heel. प्रभु यीशु को पैर में जो नीचे जो कील लगाए गए थे वो एड़ी से अंदर लगाए गए थे, Okay? Not from front. आगे से नहीं, एड़ी से लगाए गए थे। His heel was bruised. एड़ी घायल हुई थी। Jesus was bruised. यीशु मसीह एड़ी से घायल हुए, But that same Jesus crushed the head of the devil. लेकिन यही यीशु मसीह के पैर ने शैतान के सिर को कुचल दिया। Jesus, hallelujah, crushing devil. यीशु मसीह ने शैतान को कुचल दिया। As if this that was going to happen is depicted here in this scene of David burying the head of Goliath in Jerusalem. दाऊद ने Outside. यरूशलेम में गोलियात की खोपड़ी को जो गाड़ा, तो जैसे कि यीशु मसीह क्या करने वाले थे उसके लिए एक भविष्यवाणी थी। Now, those who have gone to Jerusalem, those who have gone to Israel for sightseeing, don't believe all the stories that are told to people there. अब जो लोग इजराइल जाते हैं घूमने फिरने सब देखने के लिए, सभी कहानियों पर विश्वास मत करना। They will show you one church called Church of the Holy Sepulchre. आपको एक चर्च दिखाएंगे, द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, And inside they'll show you one stone, और अंदर एक पत्थर दिखाएंगे, and they'll say that this is where Jesus was crucified. बोले कि यहीं पर यीशु मसीह को बलिदान दिया गया था। But Bible says बाइबल बताती है, Jesus was crucified outside of Jerusalem, लिखा है यरूशलेम के बाहर प्रभु यीशु को क्रूस not पे चढ़ाया within गया। the four walls of Jerusalem. यरूशलेम की चार दीवारों के बीच में नहीं। Amen. Amen. We cannot make stories. कहानियां मत बनाओ, We have to believe the word. वचन पर विश्वास करो। He was, crucified outside of Jerusalem. यरूशलेम की चार दीवारों के बाहर उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। And David also buried the head of Goliath outside the walls of Jerusalem. और दाऊद ने भी गोलियात के सिर को यरूशलेम की चार सीमाओं के बाहर गाड़ा था। Now, when the head of Goliath is there inside the earth, अब जब पृथ्वी के अंदर गोलियात के सिर को गाड़ा गया है, it's below the feet of Jesus. तो प्रभु यीशु के पैर के नीचे ही है। Hallelujah. हालेलुया। You understand me? समझ में आ रहा है? Real thing happening in the New Testament is revealed in the Old Testament. नए नियम में जो हो रहा है पुराने नियम में परछाई के तौर पर हो चुका। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। David was fulfilling the prophecy of God that is given in the book of Genesis chapter 3 verse 15. उत्पत्ति 3 और 15 में जो भविष्यवाणी दी गई थी, दाऊद उसको पूरा कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So now, all these things I shared with you अभी ये सब बातें आपको बता दी so that you may know Bible much more. ताकि बाइबल आप बहुत अच्छी तरह से जान लो। I like to study Bible बाइबल का अध्ययन मुझे बहुत अच्छा लगता है, for my spiritual growth, okay? मेरे आत्मिक वृद्धि के लिए। Whatever is good for me, मेरे लिए जो अच्छा है I'll receive it. मैं स्वीकार कर लेता हूँ। I don't know what others think. मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं। So, now we see David defeating Goliath without any arms. अब देखते हैं दाऊद बिना हथियार के गोलियात को हरा देता है। Let's go to the book of 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. दूसरा कोरंथी 10, 3, 4 और 5।
Yes. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। One more time. फिर से एक बार, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं। We have spiritual warfare to fight. हमें आत्मिक लड़ाई लड़नी है, So physical weapons will not do. इसलिए शारीरिक हथियार नहीं That is चलते why we don't carry a sword or a stick or a pistol. और इसीलिए हम बंदूक या तलवार या लकड़ी लेकर नहीं घूमते, Because our fight is spiritual fight. क्योंकि हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई So है we have to have spiritual weapons with us. और इसलिए आत्मिक हथियार होने Now what चाहिए। are the, yes, forward. पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसीलिए हम No. Read from beginning. Not 3, 4. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you one thing, dear friends. कह दूं आपसे एक बात, Well, I'm not saying dear friends like Modi, okay? I don't know. Maybe. Our fight is spiritual. हमारी लड़ाई आत्मिक है So we have to use spiritual weapons. और इसलिए आत्मिक हथियार से ही लड़ा जा If सकता है। David could fight a giant without arms, without weapons, अगर दाऊद एक राक्षस के साथ बिना हथियार लड़ाई कर सकता है, when he was not yet baptized in the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसको मिला ही नहीं तब लड़ाई कर In सकता है। olden times, the Holy Spirit hovered upon a person, पुराने नियम में पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर उतर आता था, hovered over a person. उसके ऊपर रहता था, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में Holy Spirit comes and dwells in us. पवित्र आत्मा आकर हम में बसता है। Hallelujah. Hallelujah. If he could do so, अगर वो कर सकता then है we can also face the demons. तो हम भी दुष्ट आत्माओं का We सामना can कर face सकते हैं। giants. हम भी We can राक्षसों face का सामना कर problems. सकते हैं। हम भी समस्याओं का सामना Whatever is कर सकते हैं। difficult for you, आपके लिए कुछ भी अब मुश्किल क्यों ना हो, don't fear, go back. डर के पीछे मत जाना, You face it. सामना Run करो, towards it. दौड़ो In the power of God. प्रभु परमेश्वर In की the, सामर्थ्य in the में, name of Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के नाम And से, shout at it. और चिल्ला कर कहो। Don't be shouted at. आपके ऊपर वो न चिल्लाए, But आप you चिल्लाओ, shout in his face. आप चिल्लाओ, In the name of Jesus. प्रभु यीशु के You नाम devil, go away. शैतान In निकल, the name of Jesus. प्रभु यीशु Your के problem, go away. समस्या In जा, the name of Jesus. प्रभु यीशु Your के नाम, temptation, go away. परीक्षण जा, And it has to और go. जाना ही पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Not with a sword. तलवार से नहीं, Not even sling. गोफन से नहीं, Just the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. If David could do so, अगर दाऊद कर सकता, we can do it today. हम भी कर सकते That हैं। is why the Bible says we और- are never losers. और इसलिए बाइबल कहती है हम कभी हारे हुए हैं We ही are नहीं, always conquerors. हम हमेशा विजयवंत और विजयवंत, Victorious. हमेशा हम विजयवंत। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because we face everything in the name of the Lord. क्योंकि हम सारी समस्याओं का सामना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। David says, I haven't come before you with spear or sword. दाऊद कहता है मैं तलवार या बर्छी लेकर भाला लेकर तेरे सामने नहीं I've आया, come before you in the name of God of Israel. मैं इस्राएल के परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता That is what we have to do हूं। today. यही आज हमें करना है। You think your enemy is stronger than you? आपको लगता है आपका शत्रु आपसे ज्यादा सामर्थी है? Could be true, हो सकता है, but it's not stronger than the name of Yeshua. लेकिन यीशु मसीह के नाम से ज्यादा सामर्थी नहीं। Start speaking the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम घोषित And करो you see that the devil will flee. और आप देखोगे दुश्मन भागेगा। The
giant was just walking slowly towards King David. दाऊद राजा के सामने ये राक्षस धीरे धीरे चल के आ रहा था। But David दाऊद ran towards the दौड़ giant. के गया उसके सामने। Hallelujah. Hallelujah. He was not afraid. ये डरा नहीं, He was not afraid ये डरा नहीं, because he had already seen his victory. क्योंकि उसने तो विजय अपना पहले देख ही He had लिया था। already seen his victory where? कहाँ देख लिया था? In God of Israel. इज़राइल के परमेश्वर ने अपना विजय देख लिया था। हालेलुया। We will also see every day our victory in Jesus. हम भी हर रोज अपना विजय यीशु मसीह में देख लेंगे। Amen. 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 आमीन। Jesus has God has worked his plans so wonderfully for us. प्रभु यीशु ने उसकी योजना इतनी अद्भुत रीति से हमारे लिए रची है। Can you imagine आप कल्पना कर सकते हैं? God giving this beautiful design about more than 1,000 years before Jesus came? प्रभु यीशु आए उसके लगभग 1000 साल पहले ही ईश्वर ने अपनी योजना को दिखा दिया He'll be buried here. कि वो यहीं पर गाड़ा जाएगा। No, I'm sorry, not buried here. He'll be crucified here. कि यीशु मसीह का क्रूस पे यहीं पर उनको लटकाया जाएगा। And in so doing, और ये करने के द्वारा he is going to crush the devil's head. वो शैतान के सिर को कुचल देगा। Through the death of Jesus on the cross, प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा he didn't declare defeat. हार को घोषित नहीं किया। Through the death of Jesus, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा he declared victory over Satan. शैतान के ऊपर विजय की घोषणा की। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Go home and read these verses that I've shown to you. घर जाकर जो आयतें दी फिर से एक बार पढ़ना। Devil, शैतान whose weapon is whose death, जिसका हथियार मृत्यु था, Jesus defeated it यीशु मसीह ने उसे हराया। through the weapon of devil, शैतान के हथियार के द्वारा, through his death. अपनी मृत्यु के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। He was hung on the cross at Cruz. Golgotha गोलगथा के क्रूस पर वे लटके रहे, above the head of Goliath, गोलियात के सिर के खोपड़ी के ऊपर, to show that the prophecy that God gave to mankind will be fulfilled very soon. ये दिखाने के लिए कि जो भविष्यवाणी इंसान को दी गई थी बस जल्द ही पूरी होने को तैयार है। Jesus is going to crush the head of Satan. प्रभु यीशु शैतान के सिर को कुचल देंगे। You remember that verse? He has crushed through you and me. He wants to crush the head of the snake. Look into the concordance. Snake. He will soon crush the devil under your and my feet. I'm sorry, I forgot that verse. Huh? Romans 16:20. 16:20. Romans 16:20. रोमियो 16 और 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचल देगा, कुचलवा देगा। Yes, you got it? मिल गया? Romans, it's after Genesis. रोमियो का पुस्तक उत्पत्ति के बाद ही है। शशवेशो सौदा जुईता में Yes, Romans chapter 16 verse 20. रोमियो 16 और 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus has crushed the devil under his feet. प्रभु यीशु ने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। This another point I wanted to share. Let me share now. दूसरा एक मुद्दा बता दूं, David crushed the head of
the demon, or I should say giant. दाऊद ने राक्षस के सिर को कुचल दिया। Amen. आमीन, Amen. आमीन। But the battle was not over. लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। He had to kill 4 other giants. दूसरे और चार राक्षसों को मारना था। Jesus has crushed the devil under his feet. यीशु मसीह ने शैतान को अपने सिर के नीचे कुचल दिया But है। for you and me, battle is not over. लेकिन आपके और मेरे लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। There are other devils around. हाँ, अभी भी दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं। That is why the word of God says, और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, the God of peace will soon crush Satan under your feet. कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा The battle देगा। is not over. युद्ध खत्म नहीं हुआ है। Don't put your sword in its sheath. तलवार को म्यान में डाल मत देना, Just be ready, तैयार रहना, because you are still in the battle. क्योंकि युद्ध में अभी आप हैं। You still have to crush the head of the devil. अभी भी शैतान के सिर को कुचलना You है। have to defeat many giants. अभी कई राक्षसों को मारना है। One giant is over. एक राक्षस को मार There दिया, are the giants लेकिन also. दूसरे राक्षस हैं। Hallelujah. हालेलुया। So take a decision today. निर्णय लो आज। I'm not going to face the devil and temptations and all those things in a weak spirit. मैं अपनी कमजोरी में शैतान और परीक्षा और दूसरी समस्याओं का सामना नहीं करने वाला। Not in weakness, मैं कमजोरी में but नहीं, in strength. लेकिन ताकत में। Just like David. ये दाऊद की तरह, He faced वो जैसे उसने in किया, strength ताकत में, in the name of the Lord. परमेश्वर के नाम He में। ran towards it. वो दौड़ा, He didn't run back. पीछे नहीं He गया, ran forward. दौड़ा, आगे दौड़ा, Faced the devil. शैतान का सामना Defeated किया, it. हराया। Hallelujah. हालेलुया। And thus he fulfilled the plan of God. और परमेश्वर की योजना को He पूरा किया, fulfilled the picture of God परमेश्वर की दृष्टि को पूरा that किया, was to come. परमेश्वर की आयोजन को The पूरा किया, crucifixion of Jesus Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़े जाने Let के us, बाद को God पूरा also has a plan for your and my life. किया। वही परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए भी योजना है। Let us fulfill that plan of God in our lives. हमारे जीवन में उस योजना को हम पूरा करें। Don't give up. छोड़ मत दो, Don't fall back. हिम्मत हार मत जाओ, पीछे मत Don't जाओ। retreat in defeat. पीछे हार कर पीछे जाओ Run मत जाओ, forward. आगे बढ़ो। Hallelujah. हालेलुया। I can say through my life, मैं अपने जीवन से बोल सकता हूँ, I have been attacked time and again. इतने हमले मेरे पर हुए हैं, I don't give up. मैं छोड़ता I will नहीं, never give up. मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, I have never given up, मैंने कभी छोड़ा नहीं and that's है। why I am still before you. और इसीलिए आज आपके सामने खड़ा And I हूँ। know one thing. एक बात The मैं जानता battle हूँ, is not over. युद्ध I खत्म नहीं still हुआ, have to fight. अभी भी I लड़ना have to है, crush the devil's head. अभी भी शैतान के सिर को मुझे In कुचलना Jesus' है। name, प्रभु यीशु के I नाम में will be victorious. मैं ही विजय बंद Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's all stand up. आइए अपनी जगह खड़े हो जाएं।